Hello everyone, welcome to EduTap and welcome to today's success story session. So today we have with us Mr. Raj who has cleared the SEBI Grade A 2025 examination in his first attempt being a working aspirant, and he started his preparation for the SEBI Grade A examination after the notification was out. So today we will celebrate his journey of becoming the SEBI Grade A officer, as well as we will understand from him his strategy for clearing the SEBI Grade A examination in his first attempt. So let's get started, and first of all, heartiest congratulations to you, Raj, for clearing the examination. Thank you so much, ma'am. Okay. And what was the reaction of your family when they got to know that, okay, you have cleared the exam in the first attempt? So they were very happy, and naturally, whenever I informed them a positive result, especially to my mother, so she just started crying, and the same reaction she had this time also. So uh, everyone was very happy with the results. Okay. And can you share with us your educational background? Yes, ma'am. So I belong to Devariya, a district in East UP, and I have done my initial schooling up to class 10th from Devariya only. For class 12th, I chose commerce stream, and I went to Gorakhpur for class 12th. Then I have pursued my graduation in Bachelor in Management Studies from Jain College, Mumbai, and later I have also completed my chartered accountancy parallelly after class 12th. Okay. Nice. So I have Uh, cleared in May 25 attempt. okay. And were you expecting to clear the examination in the first attempt itself? Like myself, I was not expecting. I was just giving it like, let's try this. I had chances. I was thinking I can clear if I study correctly with discipline. So, but when the notification was out, I started preparing. So yes, I was not expecting so much that I will clear this time only. So by Okay. God's grace, it came true. Okay. And were you not afraid that you will have to compete with the full-time aspirants as you were working while preparing? Also, you started preparing after the notification was out. So, were you not afraid कि full-time aspirant के साथ you will have to compete, as well as there are many of the students that have given multiple attempts till now. So, were you not afraid? So naturally, someone will think that they have some less chances, but as I've told that I had less expectations this time, so I was not thinking about what will be the outcome. I was just preparing. I was just trying to give my best and whatever I can do, rather than thinking what others have their strengths. So that helped me to just focus on my strengths. Yes. Okay. And why did you start preparing after the notification only? Why not like before then? Yes, ma'am. So I learned about this SEBI grade A exam when I was in CA finals, and so I developed a interest in this exam. So trying to I was trying to discover what are the patterns and all things. But after I was focusing on CA final exams only. After I cleared CA, I got a job in SIDBI as a in campus placement. So after I joined SIDBI in September, so I decided that I will give the next attempt of SEBI grade A, but I was not expecting this exam this early, so I was in relaxed mode by now. But when the notification was out, I started preparing this. Okay. So this is a good example for many of the students that do not expect that the notification might be delayed or it might come later on. The notification can come at any time. Like Mm. Raj was expecting it to come on a later on date, but the notification came very fast. You joined in September. I think the notification came out in October. So like just after your Yes. joining, you had to prepare also. So how did you manage this pressure of a new job where like SIDBI is a very reputed organization and there must be some pressure also for the work you are joining, you are learning new things. With that you have to prepare for the examination also. So how did you manage the pressure of a new job with the pressure of preparation? So naturally there was a pressure because even we cannot restrict the job to the working hours only because we have to learn new things. And as a new joiner, we have to put additional efforts for our job to go well. So naturally, from 10 to 7, I was every day in office, and also from home sometimes 1 hour, 2 hour I have to put in. But Miss exam was also my priority, so I have always tried to put 2 hours or 3 hours, whatever I can give
to this exam like uh, to keep boundaries that I will focus on this means no matter what comes from my job. So that was also a thing. So I put boundaries, and I with discipline I tried to follow the routine every day. That's Okay. And daily, how much time were you able to allocate for your preparation? If you can tell about your day. yes, ma'am. So like I started my day from 8 a.m. I got up and then getting ready for office, and then I went to office by 10. Then 10 to 7 I was in office with 1 hour lunch time. So after coming back from office, 1 hour I keep for rest and like talking to my parents at home. Then that 2 hours, 8 to 10, 8 to 10:30, I gave mocks like 1 hour mocks and 90 minutes mock, whatever. So I just try to give those things and also prepare from the PDFs. So I set targets, weekly targets, that in this week I will complete two subjects. Since I'm already covering these chapters from 7 years, like starting from class 11th only, in some form, in some time, I was always having looking these topics only, so I was comfortable with them. So that was not only that QR is that phase one, paper one was a challenge, and also means I tried developing that subject. Means I tried practicing on that subject, and I was trying to get at least 15 marks so that I can get confident in that. I was able to reach 45, but in this phase one exam, I only got 33 in paper one, so that thing was also like very miss, very lucky. I got that. I got saved by 3 marks, so that was the, Okay. And आपने already you were investing 5 to 6, like you invested 5 to 6 year for your CA, जो खुद में बहुत एक difficult component या एक difficult part माना जाता है, professional course माना जाता है. So after the CA, then you started preparing for the SEBI. सो आपके पेरेंट्स ने नहीं कहा कि टेक सम रेस्ट, लाइक यू हैव बीन स्टडिंग फॉर 5 6 इयर्स, तो आप थोड़ा रेस्ट लो, उसके बाद यू कैन प्रिपेयर फॉर द सेबी, और ऊपर से अभी नोटिफिकेशन इमीडिएटली आ गई है तो वैसे भी यू हैव लेस चांसेस और बहुत ज्यादा मेहनत लगेगी. yes, ma'am. So um, parents are always supportive, and what they have always taught me, always told me that to grow from to continuously grow from where you are. So with that only means after clearing CA, means they told that wo- work hard for this 4 years more and work hard to grow. And now, even after clearing SEBI, also they're like, okay, means this is good, this is good, but try to develop from here. Also, try to grow from here. Also, what you can do, just put your best effort. So these are the things. यस, लाइक द पेरेंट्स से ना कि नाइन्थ हो गया, नाउ फोकस ऑन टेंथ, टेंथ हो गया, नाउ फोकस ऑन ट्वेल्थ, जस्ट यू हैव टू क्लियर द Mhm. ट्वेल्थ, बस इतना ही मेहनत चाहिए, फिर क्लियर योर Yes. कॉलेज. सो या द सेम गोज इन एवरी फैमिली आई थिंक, और मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स. सो द सेम वेंट फॉर यू, योर पेरेंट्स वर ऑल्सो लाइक कि यू हैव डन सी ए, Mhm. नाउ यू कैन डू बेटर, you can prepare Yeah, for SEBI also. they tell that you have got a good platform and they appreciate it. They always tell that if you can go further, why to stop here? That's the thing. Like, Hmm. Correct. And how important do you think guidance is? Because you started like you had very less time. So how important do you think the guidance is in your preparation journey? this one, guidance gives us a structure so that our efforts are not wasted. Whatever efforts, whatever we do, everything is in right direction. So because I have learned this through my preparation journey only. In CA Inter, I've rigorously followed the study material of ICI. But after giving exam, I myself felt that if I would have followed the experience of, because we are studying for the first time, but the teachers, the coaching institutions, they have done this thing for like 10 years. So they have experience, they have that wisdom, what will come, what will not come. So we can utilize their wisdom and their experience. So that is very important. I feel that we took guidance from those who have seen the course from so many years. So that is very necessary. And also, I would like to mention that
when I tried exploring this exam, every time what is the syllabus, what is the pattern, what are the PYQs, every time like I get the best guidance videos from EduTap only. So I really like the video, and now also miss, and also while the preparation and journey, that what will the cutoffs, that thing also, and how to be in interview, all these things. That best guide, I think, guidance in for guidance aspect, EduTap is really very best institution, right? Thank you so much. Thank you so much. And we take like we put in importance on the guidance part also, because we know that the students, they are, many of the students, they are preparing for the first time, and they are stuck in some ways in the part that how to start, when to start, what to do. So yes, so here like the initial push is required, because the rectification or the understanding of the concepts can be done. But first, what has to be understood, that need to be guided upon. Correct. Mm. Now, did you leave social media, or were you preparing? You were also working, and you invested some time for yourself for the social media and such also. Ma'am, this topic always comes in a student's mind, and like my friends, what they chose means they chose to continue using that social media accounts, and they have also cleared the exams. But personally, I always deactivate my accounts to keep my focus on the studies. So this is what I feel personally. I think it's always personal to personal, because Mhm. someone who can control themselves, and also for half an hour, if you do, it refreshes your mind. Mhm. But I cannot restrict myself to half an hour with these reels and snaps, everything, so shorts. Yes. So that's why that's it. Okay, so yes, as Raj also said, that it depends on person to person, and that's why it is called doom scrolling. Because like it, if you keep on scrolling, then it really leads to the doom. But I will say that if you are doing, like you have also said, that if you are doing for 30 minutes just to refresh your mind, that is different. But I hope that if you are preparing, you are not just doing the doom scrolling, because that becomes problematic in the preparation. Correct. Now, who was the backbone in your preparation journey? So, ma'am, my family is always the backbone, and they have always supported me, and and they always have expectations. But I think even after failure, they have trust in me like every time, and they have more trust in me sometimes than I myself trust in me. So that always gives me confidence, and that always boosts my morale when I have failed. So that thing is always there, that even if I fail, my family will support me. So they have always been the constant motivation factor. Correct. Now you cleared the examination in first attempt. So for the students who are preparing for the first time, or they are giving their first attempt, so any strategic points that you want to share to them, कोई strategy आप बताना चाहोगे for the students who are preparing for the first time? I would recommend that always go for guidance videos. Always take help of those. Always take help of mentors, that one-on-one sessions on Telegram, and that will help you structure the syllabus which you have to cover. Because for first time, we don't know from where the questions come, and which stand up to what standard the question comes. So you have to seek guidance from the resources available, and Mhm. with that, you always have your best shot when you are fully guided like correctly. Correct. And what did the first thing, like after getting the guidance, what was the first thing that you do, or that you did? No, when I after I got guidance, I tried to evaluate myself, because you see, I've already covered the syllabus in one sense, that already read all the subjects, all the theories once. So I tried to evaluate where I stand today. So the best thing for that was the mock test. So I attempted mock test for every subject, and every like paper one and paper two, everything. So that has always gave me a hint at where I stand today, how many marks I'm scoring, and how much on what subjects I have to Mhm. work hard and which part to develop. So that was one thing, to assess where my preparation, and then to Mhm. develop where I was having weaknesses. Correct. So,
you need to take the guidance first. That means you need to understand the pattern, the syllabus, like how you should proceed further. Then you have to evaluate yourself. Basically, you have to understand your strengths and weaknesses. That, okay, in these subjects, I can do better. In these subjects, I have to improve. Correct. Now, what were the challenges that you personally faced? Because again, you were working, you had a new job, as well as you also started your preparation after the notification. So, what were the challenges that you faced during your preparation journey? I think that the main challenge for working professionals are that we have very less time. The time is scarce because for me also it was like at the time of CA, my family always supported me, and I kept always like I could not give my time to them in important family events and everything like so what has always happened that even after clearing CA, when I seek time that for preparation of the next exam, so it was a guilt to me also that I am not giving them their due time. But with all the motivation and they are also backing that you study first and then you come home and all that those things. So that was also there. So working professional, it is very the due to scarcity of time, it becomes a challenge. But what we can do that from anyhow we have to means we have to first analyze how many time we will require to devote on this syllabus, and that time we have to from anywhere of our day we have to get that time carved out, and we have to develop routine and follow that. Also, ma'am, in class 12th, my school principal he said one line one day, and he told that every day God gives every each one of us a blank check of 24 hours. So we can do anything, I mean, we can write anything on that check of 24 hours, whatever we think. So that is also the thing that we can carve out. And preparation, you see, if we have to prepare for 6 months, we can, means like if we sleep 8 to 9 hours, we can do that 7 to 8 hours, 6 to 7 hours for 6 months. I'm saying I'm not telling to develop it a lifetime habit. So we have to give that thing. And also when exams are near, no one get sleep तो मतलब नींद तो उड़ी जाती है तो मतलब जब एग्जाम पास हो तो हम दे सकते हैं वहां से भी टाइम उसको तो देख सकते हैं एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। बहुत ही अच्छा आपके प्रिंसिपल ने भी बोला कि यू हैव द लिमिटेड टाइम, पर वो सभी के पास उतना लिमिटेड टाइम है, तो थोड़ा सा इफ यू पुट इन मोर एफर्ट्स अपने जो भी आपका लक्ष्य है, जो भी आपका टारगेट है, उसको यू विल बी एबल टू मीट इफ यू पुट इन द एफर्ट्स। यस वेरी वेल सेड, आई विल से। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि आपका जो प्रिपरेशन जर्नी था वो काफी शॉर्ट पीरियड के लिए था, क्योंकि नोटिफिकेशन के बाद सिर्फ 1 महीना होता है फेज 1 के लिए और 1 महीना होता है फॉर द फेज 2। तो इस मतलब इस टाइम पीरियड में आपने, अब थोड़ा सा स्ट्रैटेजी के बारे में बात करते हैं कि फेज 1 के लिए आपने कैसे प्रिपेयर किया, कि फेज 1 में स्पेशली पेपर 1। मैम पेपर वन में तो मतलब जीके था तो चूंकि सेबी में सेक्शनल कट ऑफ्स नहीं थे तो वो एक बहुत बड़ा एडवांटेज था मुझे क्योंकि जीके मैंने कभी ऐसे प्रिपेयर नहीं किया है मतलब क्लास 11 से ही। और तो मैंने यही सोचा था कि क्यूआरई सेक्शन से हम्म। क्वांट रीजनिंग और इंग्लिश से मैं अ, जो 30 मार्क्स लाने हैं वो लेके आऊंगा। बाकी 3 महीने के करंट अफेयर्स में मतलब फाइनेंशियल न्यूज मैंने देख रखे थे, एक रिसोर्स से मैंने कवर कर लिया था उसको भी। बट उस पे मेरा फोकस नहीं था, मेरा फोकस था कि क्यूआरई से। और जब मैंने मॉक्स दिए तो मुझे ये समझ आ गया था कि कौन से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने, क्योंकि फर्स्ट टाइम में पेपर नहीं कंप्लीट हुआ था, 30 से कम ही आ रहे थे। बट धीरे धीरे फिर उसको डेवलप करके 45 तक ले गया था। एंड हम्म। जैसे बताया कि एग्जाम के प्रेशर में वो 33 हो गया, बट बच गया मैं, मतलब 3 मार्क्स से बच गया। सो चूंकि क्वालिफाइंग नेचर का ये, तो उस पर बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना, लेकिन आपको इतना इंश्योर करना कि 30 क्रॉस होंगे, मतलब 40 45 सेफ जोन आप जाओ, 50 सेफ जोन जाओ। और अगर आप मैथ्स बैकग्राउंड से हो, उस बैकग्राउंड से हो, तो आप ज्यादा स्कोर कर सकते हो नेचुरली। फिर पेपर 2 की बात करें तो पेपर 2 क्योंकि फेज 2 में भी आना था तो हम्म। एक कम्प्रेहेंसिव मतलब उसको प्रिपेयर कर रहे थे दो फेज 1 फेज 2 के लेके। और पेपर 2 में मुझे कम डर था बिकॉज आई नो दैट आई विल स्कोर गुड। तो आई थिंक 69 आई स्कोर्ड इन पेपर 2 इन फेज 1। सो दैट हम्म। वाज द स्कोर। ओके। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी। पहले तो कंपनीज लॉ के लिए कैसे पढ़ा, और इस बारी जो है एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आए तो एग्जाम में फिर आपने उसको कैसे हैंडल किया?
मैम कंपनीज एक्ट का जब मैंने पीवाईक्यूज देखे तो मुझे यही लगा कि वो बेयर एक्ट से पूछते हैं, सेक्शन से। बस उनके जो लिमिट्स हैं उनको आपको याद करना है। तो कोचिंग मटेरियल्स होते हैं कि चार्ट्स वगैरह भी आपको देते हैं, और आप अगर खुद से भी चाहो तो वो लिमिट्स की चार्ट्स बना सकते हो किसी एक हम्म। अपने टेबल में, अपने प्रेजेंटेशन के हिसाब से बना सकते हो, आपको याद रहे। वहां पे आपको थोड़ा सा एफर्ट्स आप पुट इन कर देते हो अगर लिमिट्स है तो वो लिमिट्स याद हो जाते हैं। मतलब वो बहुत ऑडिट, मतलब वो उतने भी हार्ड नहीं होते हैं कि कुछ लिमिट, क्योंकि आप क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करते हो तो वो समझ आने लगते हैं। ऑप्शन देख के भी आपको कभी कभी मतलब वो आइडिया मिल जाता है, 4 ऑप्शन 5 ऑप्शन देख के भी। फिर लेकिन इस बार जो अचानक से पैटर्न से चेंज हो गए तो एप्लीकेशन बेस आए थे। हम्म। तो मैम मतलब मुझे तो सीए का बैकग्राउंड था तो उसने थोड़ा हेल्प किया कि मतलब वहां से मैंने इंटरप्रेट कर लिया कि क्या आंसर होना चाहिए उसमें हम्म। से। तो आई विल से कि जो आपका बैकग्राउंड नॉलेज होता है दैट आल्सो हेल्प्स यू, चाहे वो कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, चाहे कहीं भी आपने बुक्स पढ़ रही हैं, आपने जो भी इंटरप्रिटेशन की नॉलेज गेन की है, या आपने जो लॉजिकल रीजनिंग डेवलप किया है अपने दिमाग में, तो वो आपको कहीं ना कहीं हेल्प करता है टू डू द एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। और तो जितने सर, ज्यादा एमसीक्यू सॉल्व करोगे, जितने ज्यादा मॉक टेस्ट दोगे, दैट इज बेटर। यस यस। मैम। और तो मैम इस बार जो 8 क्वेश्चन ऐसे भी आए थे जिसमें सबको ये बोला था कि मतलब सीए बैकग्राउंड के लोग ही कर सकते हैं, क्योंकि वो जीएसटी और इनकम टैक्स से क्वेश्चन पूछे थे जो कि नॉर्मली किसी के भी कोर्स में थे नहीं, शायद वो नोटिफिकेशन वाले सिलेबस में भी नहीं रहे हो शायद। तो लेकिन वो चीज़ भी है कि वहां से भी थोड़ी हेल्प हो गई थी। और इस बार अकाउंट्स का भी जो क्वेश्चन आए थे वो भी मैम बहुत अच्छे स्टैंडर्ड के आए थे, मुझे लगा था मतलब कि उसमें भी आपको अच्छे से कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए अगर आपको सॉल्व। सो ऑल दिस वर। Okay. For Companies Act, Companies Law, did you make any notes? नहीं मैम, नोट्स मतलब ये लिमिट्स वाले चार्ट्स बनाए थे, सेक्शंस के नहीं, लेकिन लिमिट्स जितने थे उसको लिख के अपने अपने प्रेजेंटेशन के बेसिस पे लिख के याद उसको किया था मैंने। तो जो फैक्ट्स है वो लिख कर ही याद होंगे मेनली, सो दैट यू Yes. विल हैव टू डू। नाउ कमिंग टू इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स लाइक how difficult was it for you, and how did you tackle it in the examination? इस बारी काफी difficult और अलग लेवल के क्वेश्चन थे कि स्टेटमेंट बेस्ड, मल्टीपल फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग, तो उसको कैसे टैकल किया और प्रिपेयर कैसे किया था? मैम इकोनॉमिक्स में तो हमेशा से ये रहा है कि रिवीजन बहुत उसमें इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जितने उसमें चार्ट्स हैं तो हम्म। आपको जब भी आप उसको पढ़ते हो क्लास में तब आपको याद वो समझ आता है, क्योंकि बहुत ही आपको लगता है बहुत अच्छा फ्लो है, मतलब लॉजिकल फ्लो चल रहा है तो आप समझ लेते हो। लेकिन एक हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद आपको नहीं याद रहती चीजें। तो उसमें रिवीजन आपको करते रहना है, वो बहुत जरूरी है। और इस बार भी जो क्वेश्चन आए थे तो उसमें भी मैं यही बोलूंगा, इकोनॉमिक्स में भी जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी था वो चाहिए था। तो उसकी वजह हम्म। से बाकी न्यूमेरिकल जो आ गए थे तो नेशनल इनकम वाली तो हो गए थे, लेकिन एक दो ऐसे न्यूमेरिकल्स थे जिसमें फॉर्मूला मुझे नहीं आता तो वो क्वेश्चंस नहीं हो पाए थे, ऐसा था उसमें। हम्म। बाकी इकोनॉमिक्स में हम जनरली तो ये है कि जो सेट पीवाईक्यूज के न्यूमेरिकल्स हैं उनको आप कर लोगे, क्योंकि न्यूमेरिकल्स स्कोरिंग होते हैं। अगर आपको उसका फॉर्मूला याद है, आपने उसको क्वेश्चंस को सॉल्व किया तो वो गलत नहीं होते हैं ऐसे नॉर्मल। करेक्ट, अगर आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है तो यू विल बी एबल टू आंसर द क्वेश्चंस, और साथ में फॉर्मूलाज थोड़े से याद करने होते हैं। करेक्ट। नाउ कमिंग टू फाइनेंस एंड मैनेजमेंट, तो फाइनेंस एंड मैनेजमेंट, हाउ डिड यू प्रिपेयर फॉर फाइनेंस एंड मैनेजमेंट? यस, मैनेजमेंट के लिए मेरा ये ग्रेजुएशन में कोर्स था, बैचलर इन मैनेजमेंट हम्म। स्टडीज। तो वहाँ पे मैंने सारी थियरीज कर रखी थी, एक बार पढ़ रखी थी, इतने डीप में नहीं किया था। एंड देन दिस थिंग कि कोचिंग के जो नोट्स थे उसमें सारे टॉपिक्स कवर्ड थे, तो वहां से मतलब उसको कवर किया था, उसके पीवाईक्यूज किए थे। मैनेजमेंट से भी इस बार थोड़े एप्लीकेशन बेस्ड थे तो उसमें भी थोड़ा सा इंटरप्रेट करके अप्लाई किया था, क्वेश्चन जितने समझ आ रहे थे सॉल्व किए थे उसमें। एंड ओके। फाइनेंस मैम, फाइनेंस में चैलेंज ये था कि कोई कंक्रीट सिलेबस था नहीं, कभी ऐसे ऐसे सब्जेक्ट कहीं भी देखा नहीं था फाइनेंस को। बट फिर मैंने वही जो कोचिंग के नोट्स थे मेरे, उसको बेस बना के कि इस इतना कर लेता हूँ, अच्छे से कर लेता हूँ पीवाईक्यूज में जितने क्वेश्चन, क्योंकि पीवाईक्यू में जैसे क्वेश्चन आ रहे थे उसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट था वो पढ़ना जरूरी था, तो उसकी वजह से वो नोट्स दे गए थे। और 2-3 रिसोर्सेज फॉलो किए थे मैंने, ताकि कहीं से कुछ छूट रहा हो तो वो आपस में कवर हो जाए, मतलब इधर से। तो उस वजह से उस वैसे प्रिपेयर किया था।
ओके, एंड कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी के लिए हाउ डिड यू प्रिपेयर फॉर दैट? मैंने कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी में मैंने एक बार रीचेक किया स्टैंड मतलब कि ये स्टैंडर्ड ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस लेवल के आ रहे हैं। तो वो चेक किया, एक बार देखा था, उसको सॉल्व किया था। और एक बार जो नॉर्मल अकाउंटिंग होता है उसको देखा था। बाकी वो चीज मतलब आ रही थी मुझे, ऐसे नेचुरली आ रही थी क्योंकि सीए का बैकग्राउंड है। हाँ। तो वो प्रिपेयर हुआ था। लास्ट कमिंग टू कॉस्टिंग, उसके लिए कुछ अलग से आपने प्रिपेयर किया है या बेसिक? नहीं, कॉस्टिंग में जो कॉस्टिंग के थियरीज थे वो उतने डीप में नहीं किया था कहीं। तो हम्म। उसको अच्छे से फॉलो किया, उसको अच्छे से प्रिपेयर किया था। बाकी जो टेक्निक्स एंड मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग थे या थियरीज ऑफ कॉस्ट हम्म। अकाउंटिंग था, वो सब पहले कर रखा था। उसको भी मतलब नोट से एक बार करके पीवाईक्यूज किए थे, तो वो तो मतलब मैनेजेबल लग रहा था मुझे। बट ये ओके। जो कॉस्टिंग के थियरीज होते हैं उसमें थोड़ा चैलेंज था, उसको कवर किया। ओके, और आपके लिए, आपके हिसाब से टफेस्ट सब्जेक्ट कौन से हैं फॉर एनीवन और फॉर यू पर्टिकुलरली? मतलब फॉर मी मतलब आई फेल्ट फाइनेंस बिकॉज उसमें सर्कुलर्स के भी कुछ क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड हो जाते हैं, तो एक थोड़ा सा सिलेबस उसका बहुत वाइड हो जाता है। हम्म। तो एक फाइनेंस था, और दूसरा मैं बोलूंगा मैनेजमेंट था, जो कि हर जगह नहीं कवर किया हुआ था मैंने। तो मैनेजमेंट उस वजह से थोड़ा सा चैलेंजिंग था। मतलब ये दोनों से बाकी सब्जेक्ट्स तो मैंने देख रखे थे, हम्म। बस मुझे प्रैक्टिस करना था उस क्वेश्चंस को, आईक्यूज को सॉल्व करते। ओके, नाउ वी हैव डिस्कस्ड अबाउट फेज वन, पेपर वन, पेपर टू का भी इंटीग्रेटेड स्ट्रैटेजी है कि जैसे आप फेज वन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो वो आपको फेज टू में भी हेल्प करेगा। वन क्वेश्चन इज कि आपने सारे सब्जेक्ट्स के लिए नोट्स बनाए थे या सिर्फ कंपनीज लॉ या किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए ही बनाए थे नोट्स? कंपनीज एक्ट का बनाया था मैंने, मतलब लिमिट्स पे बनाए थे। बाकी नेशनल इनकम के जो थ्योरीज थी वो रिवाइज करने के लिए बनाया था। मतलब ये हम्म। रिवीजन बेसिस के लिए मैंने अपने सेल्फ के लिए वो 50 पेजेस के हर सब्जेक्ट से बनाए थे, जो चीज मुझे रिवाइज करनी थी। और हम्म। फॉर्मूलाज वगैरह के बनाए थे, तो उस और मतलब ताकि वो एग्जाम डे पे मुझे याद रह जाए, उसको फिर हम्म। फॉलो किया था, वैसे ही किया। करेक्ट, अगर आपके पास एडुटैप के नोट्स हैं या किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के कहीं के भी नोट्स हैं तो उसमें यू कैन मार्क द नोट्स, यू कैन हाईलाइट इट, और जो आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है जो आपको याद करना है उसको आप थोड़ा सा समराइज्ड फॉर्म में लिख सकते हो, उसके डायग्राम्स वगैरह बना सकते हो, तो दैट इज करेक्ट कि ऐसे लाइन टू लाइन नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा रिवीजन के यस लिए यू मैम। विल हैव टू डू इट। क्योंकि ये सारे यस मैम। सब्जेक्ट्स ही ऐसे हैं जिसमें जैसे कंपनीज एक्ट में लिमिट्स वगैरह, फैक्ट्स वगैरह याद करने हैं, मैनेजमेंट में थोड़ा थ्योरीज को याद करने के लिए कुछ तो बेसिक लिखना पड़ेगा, इकोनॉमिक्स में आपको चार्ट्स वगैरह या ग्राफ्स वगैरह बनाने पड़ेंगे, so that is correct. Now, coming to the next part, that is English descriptive. यस मैम। मैम इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव में भी मैंने मॉक दिए थे, टाइपिंग किया था, मतलब इस कंप्यूटर पे किया था टाइपिंग, और मॉक दिया था। और मतलब उसमें भी मॉक में यही बात है कि पहली बार में पेपर छूट जा रहे थे, आरसी के 2 क्वेश्चन छूट जा रहे थे, तो मुझे पता था किस में कितना लिखना है, कैसे लिखना है। देन उसके बेसिस पे मैंने फिर एग्जाम के लिए स्ट्रेटेजी बनाई थी कि 53 मिनट्स में मैं अपने पेपर कंप्लीट कर दूंगा सारा। तो जो भी वहां से बफर टाइम चलेगा वो 7 मिनट्स में आ जाएंगे। तो उससे मैंने पेपर कंप्लीट हो गया था। दूसरा में आरसी और थीसिस राइटिंग में क्या है कि कंटेंट आपको पेपर में ही दिया हुआ है, Hmm. आपको वहीं से लिखना है। बट फिर ऐसे में क्या हो जाता है कि आपको कंटेंट प्रिपेयर भी करके जाना पड़ता है। तो उसके लिए मैम जैसे इकोनॉमी के 3-4 डेटा पॉइंट्स मैंने याद कर रखे थे, जैसे जीडीपी कितनी, अपनी रैंक कितनी है, इन्फ्लेशन रेट क्या चल रहा है, जीडीपी ग्रोथ रेट क्या है, और आरबीआई का जो स्टैंड है, रेपो रेट क्या है, आरबीआई का जो इकोनॉमी को लेकर स्टैंड है वो क्या। ये 5-6 चीजें जनरल सी जो अपनी इकोनॉमी से रिलेटेड है वो मैंने याद कर रखी थी, ताकि अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आता है फाइनेंस से रिलेटेड तो मैं उसमें डेटा पॉइंट से दे सकूं। तो उस वैसे ही बेसिस पे जो ऐसे का टॉपिक था वो ये था कि इंडिया अपना ग्लोबल इमेज बना रहा है, ऐसा Hmm. जनरल सा टॉपिक था। तो उसमें भी मैंने फर्स्ट पैरा में इंडिया की इकोनॉमिक कैसी चल रही है उस बेसिस पे मैंने कमेंट कर दिया था। फिर नेक्स्ट पेज में आर्ट, कल्चर, स्पोर्ट्स, टेक्नोलॉजी, स्पेस, इन सब चीजों पे लिख के मैंने ऐसे किया था। तो Hmm. मतलब वो सारे कोचिंग वाले ये बता रहे थे कि आपको कुछ डेटा पॉइंट्स लिख दोगे तो थोड़ा ऐसे अच्छा लगेगा। उस वजह से मैंने ये जनरल सी चीजें Hmm. 7-8 चीजें याद करके गया था, और उनको कोट कर दिया था ऐसे में। मतलब जितना Correct. हो पाया 3-4 चीजें किया था।
सो यू थिंक कि जो जैसे जनरल ये अंडरस्टैंडिंग होता है कि हम इंग्लिश इतने टाइम से लिखते आ रहे हैं, हमने इतने पेपर्स वगैरह दे रखे हैं, तो डू यू थिंक कि चाहिए होता है सेपरेट प्रिपरेशन, या हमारी जो बेसिक नॉलेज है उसमें चल जाता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे डोंट प्रिपेयर फॉर इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव होलिस्टिकली। मैं ये सोचता हूँ ना कि जैसे एग्जाम के लिए जो रेलेवेंट है वो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे तो मैं 7 साल से सब सारे सब्जेक्ट भी पढ़ रहा था, बट सेबी में क्या आता है, उनकी क्या एक्सपेक्टेशन है, वो चीज आपको कवर करना पड़ेगा। तो उस वजह से आपको वो जो उनका पैटर्न है उस चीज के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तो वो सोच के कि वो कि मतलब, क्योंकि अब मैं लिखता तो आया हूँ ऐसे, बट वो नहीं हो रहे थे। फर्स्ट 2-3 मॉक दिए तो नहीं कंप्लीट हुआ ना, मतलब वो 60 मिनट्स में आपको किस में क्या लिखना है, कैसे लिखना है, वो चीज आपको प्रिपेयर करनी पड़ेगी। तो यू कैन नॉट कीप थिंग्स एज ऑप्शनल, बिकॉज मतलब आपको हर जगह से अपना बेस्ट देना है, तो वो प्रिपेयर करना पड़ेगा वो चीज। करेक्ट, वेरी वेल सेड कि लिखते तो हम बहुत टाइम से आ रहे हैं, लेकिन उस एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, यस उस टाइम लिमिट में हमें कितना लिखना है, कैसे लिखना है, वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से होता है हर एक चीज का। जैसे सीए में कुछ और रिक्वायरमेंट होगा, जबकि वही सब्जेक्ट का रिक्वायरमेंट फॉर द सेबी कुड बी डिफरेंट। अच्छा, यस। इसी आंसर से मुझे एक क्वेश्चन आया कि मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स थिंक कि हाँ, सीए वालों के लिए तो बहुत ईजी होता होगा निकालना। तो इज इट एब्सोल्युटली ट्रू, या नहीं कुछ डिफिकल्टीज आती हैं फॉर द कॉमर्स स्टूडेंट्स, फॉर द आई सीए स्टूडेंट्स? थिंक ये एक बहुत ही नेचुरल सा डेवलपमेंट है। और अगर जो नॉन कॉमर्स स्ट्रीम के हैं, पहले तो मैं एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ कि अगर जो एग्जाम के रिक्रूटिंग बॉडी है, अगर वो बोल रहा है कि आप एलिजिबल हो इस एग्जाम के लिए, तो मतलब आप भी कर सकते हो। अगर नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड है तो आप भी कर सकते हो। दूसरा मैं ये बोलूंगा कि सीए पीपल के लिए इजी ये चीज है कि अगर कोई 6 साल से वही सब्जेक्ट पढ़ रहा है तो नेचुरली वो इजी रहेगा। तो आपको मतलब ऐसे सेबी के लिए तो स्पेसिफिकली नहीं पढ़ रहे थे 6 साल से, बट आपको जो अपना 2 साल का प्रिपरेशन है, 3 साल का प्रिपरेशन, जो भी जितना भी पीरियड में आप प्रिपेयर करो, आपको वो 6 साल को मैच करना पड़ेगा। अगर क्योंकि डेट विल मतलब यही बस एडवांटेज है सीए, क्योंकि वो 6 साल से कर रहा है, वही सेम सब्जेक्ट्स पढ़ रहा है। तो आपको भी मतलब वो एफर्ट्स देने पड़ेंगे, आपने भी दिए अपने अपने बैकग्राउंड में दिए हैं एफर्ट्स, बट जो सिलेबस है वो अगर दूसरा है तो फिर आपको एडिशनल देना पड़ेगा, दैट इज द थिंग। सो वो एफर्ट्स आप ले आओगे तो आप जरूर से होगे, क्योंकि अभी भी जो हुआ है एसएबी में, उसमें भी हमने मतलब ग्रुप में ये चीज देखा कि कितने लोग हुए हैं, किस स्ट्रीम से हुए हैं। आई थिंक अगेन 30% ही आ रहा है सीए का, तो मतलब बाकी जो है वो अलग बैकग्राउंड से ही है। सीए सी एस में 30 के ही हैं, बाकी जो है अलग से हैं। तो वही है कि उन्होंने एडिशनल एफर्ट्स को पुट करें, वो मैच किया है उस 6 इयर्स के हम्म। प्रिपरेशन जर्नी को, तो फिर वो नेचुरली हुआ है उनका सिलेक्शन। करेक्ट, जैसे आपने नोटिफिकेशन के बाद स्टार्ट किया, पर आप एक दो महीने में वो कैच कर पाए उतने, मतलब 6 सब्जेक्ट्स। तो वो यस शायद फॉर अ एब्सोल्युटली न्यू स्टूडेंट जो बिल्कुल ही बीटेक बैकग्राउंड से या कोई और बैकग्राउंड से आ रहा है, बैचलर्स मतलब आर्ट्स बैकग्राउंड से आ रहा है, तो उनके लिए शायद मुश्किल हो सकता है। बट इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो रिक्वायरमेंट है एग्जाम की, वो आपको बस सिलेबस में स्टक रहना है, थोड़ा सा डीपर अंडरस्टैंडिंग लेनी है, तो मे बी आपको 2 महीने नहीं 6 महीने लगेंगे, बट यू कैन डू इट। बहुत सारे हमने भी यस। इंटरव्यूज लिए हैं, बीटेक स्टूडेंट्स, दे हैव ऑल्सो क्लियर्ड इन द फर्स्ट अटेम्प्ट, बट वो प्रिपेयर फिर 6 महीने से 8 महीने से कर रहे थे, और उन्होंने अपना जो उनकी भी स्ट्रेंथ्स होती है, जैसे बीटेक बैकग्राउंड की अलग स्ट्रेंथ्स होती है, जो आर्ट्स बैकग्राउंड से आ रहे हैं उनकी अलग स्ट्रेंथ्स होती है। सो हर एक यस स्ट्रीम की अपनी अपनी स्ट्रेंथ होती है जो उनको यूटिलाइज करनी होती है। मैम, इकोनॉमिक्स तो आर्ट्स बैकग्राउंड वाले कवर करते हम्म। भी हैं मतलब। हाँ। और ऐसे ही मतलब सबके, अब पीसीएम वाले जो हैं उनकी मैथ्स अच्छी, रीजनिंग अच्छी है, तो हाँ। पेपर वन का उनको नहीं पढ़ना, जबकि हमें हम्म। प्रिपेयर करना पड़ता है उन चीजों को। तो एवरीवन हैज देयर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, हम्म। वी जस्ट हैव टू लाइक वर्क ऑन आवर स्ट्रेंथ्स। हाँ, और टाइम में भी ऐसा हो सकता है कि टाइम थोड़ा ज्यादा लगे, पर अगर आपका वो टारगेट है क्लियर करना, तो यू कैन डू इट, ठीक है। 2 महीने में तो 6 महीने में हो जाएगा, करेक्ट। नाउ वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द 6 सब्जेक्ट्स, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव ऑल्सो। अब आते हैं इंटरव्यू पर। सो बिफोर द इंटरव्यू, डिड यू गिव द मॉक इंटरव्यूज? Yes, ma'am. As I've always mentioned that I always seek guidance from wherever I can. So always think that कि mock interview देना बहुत जरूरी था. And really, I think that the feedbacks which I got were very actionable feedbacks, and they have really helped me in the actual interview. And I gave one mock interview from EduTap, and one from one other institution. And also, I seek help of one other institution wherein I gave my DAF to them, and they sent me 50 plus questions related to my DAF, and I prepared them thoroughly and went for the interview. So that was one thing.
एंड Okay. ऑल्सो आई वुड लाइक टू मेंशन कि इंटरव्यू के टाइम पे मैम जो गाइडेंस है, मतलब जितना भी है, मतलब इंटरव्यू के टाइम तक आप सोचते हो कि सामने वाला क्या पूछ लेगा, सामने वाला आपसे कुछ भी पूछ सकता है, जो मतलब इस यूनिवर्स में उसके दिमाग में आपके आंसर से क्या चला गया वो वही जानेगा, कि उसका क्या बैकग्राउंड है, उससे पूछ सकता है। सो यू ऑलवेज फील कि क्या मेरी प्रिपरेशन कंप्लीट है, और वो कोई भी गाइडेंस आपको ये नहीं बोल सकती आपकी आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट है, बट यू ऑलवेज हैव टू बी चिल, ये सोच के कि आपको मतलब जो आपके सामने बैठे हैं पैनलिस्ट, वो मतलब बहुत एक्सपीरियंस्ड है आपसे, और उनको भी पता है कि आप 15-20 मिनट में अपना पूरा रिफ्लेक्शन नहीं दे पाओगे। तो अगर आप चिल रहोगे, थोड़ा ऑनेस्ट रहोगे, तो वो आपको जज कर लेंगे, क्योंकि इंटरव्यू आपके पर्सनैलिटी का ही टेस्ट है। तो आप जितना चिल रहोगे वो इतना अच्छा पर्सनैलिटी आप शो कर पाओगे उनको, और उसके ज्यादा टेंशन नहीं लेके उसमें थोड़ा चिल रहोगे आप, तो वो अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। क्योंकि जितना गाइडेंस मिला उससे यही समझ आया कि जब आप इंटरव्यू रूम में चले जाते हो तो आप एवरेज मार्क्स सिक्योर कर लेते हो। अगर आप चिल रहोगे वहां पे थोड़ा अच्छा हो जाएगा, अगर आप थोड़ा नर्वस हो गए तो आप पैनिक करोगे, तो वो थोड़ा माइनस में चला जाएगा। तो उस बेसिस पे आप थोड़ा चिल रहो, हो जाएगा इंटरव्यू। सो बेसिक आइडिया इज कि अपने दिमाग को थोड़ा सा मतलब चिल रहने का मतलब है कि हाँ यू हैव टू बी रिस्पेक्टफुल, बट अपने दिमाग को कूल रखो। और जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं वो आप या तो हाँ कर सकते हो या ना कर सकते हो, वहां पे बैठकर सोचने का फायदा नहीं है कि अब तो मैं यस, नहीं दे पाया तो क्या होगा। तो फिर उसके आगे के 5 क्वेश्चन खराब हो जाएंगे। तो अभी यस नहीं हो पाया तो नहीं हो पाया, फिर आगे के क्वेश्चन पर फोकस करो कि आगे के क्वेश्चंस मैं अच्छे से दे दूं। दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। नाउ, किस तरीके के क्वेश्चंस थे इंटरव्यू में, लाइक हाउ वाज द पैनल, और किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए आपसे? मैम। पैनल वाज वेरी कॉर्डियल, एंड मतलब 1 चेयर पर्सन थे, 2 मेल मेंबर्स थी, 1 फीमेल मेंबर थी। और जो रूम का सेटिंग था वो भी मैम बहुत अच्छा था, ऐसे कि टेबल जो थी हमारे बीच में वो बहुत बड़ी थी, और चेयर टेबल के बगल में ही थी, तो मतलब आपके जो लेग्स हैं वो नहीं विजिबल थे पैनल को। तो आप मतलब कि आप शेक कर रहे हो क्या कर रहे हो, वो चीज़ का आपको टेंशन नहीं लेना था कि आपकी लेग की क्या पोजीशनिंग है। आप आराम से पोस्चर लेके वहां पे उनसे बात कर सकते थे, नॉर्मली कन्वर्सेशन कर सकते थे, और पैनल कॉर्डियल थी। और नॉर्मल इंट्रोडक्शन क्वेश्चन से उन्होंने स्टार्ट किया, आप मतलब वो सबको प्रिपेयर करके जाता है, मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया। देन सेकंड क्वेश्चन वाज कि अगर कोई आपसे इन्वेस्टमेंट एडवाइस लेने आता है तो आप उनको क्या कहोगे, क्या एडवाइस दोगे। तो आई टोल्ड कि मैं पहले तो मैं ये डिस्क्लेमर दूंगा उनको कि इन्वेस्टमेंट में आपका लॉस हो सकता है। तो दे टोल्ड नहीं, मतलब ये हम नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हम दूसरा आंसर एक्सपेक्ट कर। तो मैंने बोला हम अगर मैं उनसे पूछूंगा कि उनको ज्यादा रिस्क लेना है कम, अगर उनको कम रिस्क लेना है तो डेट सजेस्ट करूंगा, ज्यादा लेना है तो इक्विटी। उन्होंने बोला कि हाँ। फिर ऐसे गए वो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो सेकंड क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन वाज कि फाइनेंशियल प्लानिंग और इन्वेस्टमेंट में क्या डिफरेंस होता है। सो टू दैट आई रिप्लाइड कि इन्वेस्टमेंट में मतलब आप इन्वेस्ट कर रहे हो वहां से रिटर्न्स आने हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग में आप अपने लाइफ के सारे मेजर एक्सपेंडिचर को मतलब वो करते हो, कि एजुकेशन है, मैरिज है, और जो भी है रिटायरमेंट में आपको कितना कॉर्पस चाहिए, ये चीजें थी। फिर इस पे काउंटर आएगी क्या इंश्योरेंस नहीं, नहीं। फिर एक दूसरा क्वेश्चन है कि आप कौन कौन से सजेस्ट करोगे इन्वेस्टमेंट वो। तो उस पे म्यूचुअल फंड, इक्विटी, डेट, रीट्स, इनविट्स में मैं चला गया था। तो वहाँ पे काउंटर आएगी कि आप इंश्योरेंस नहीं सजेस्ट करोगे। तो एक बार को मैंने सोचा कि थोड़ा सा डिफेंड करता हूँ खुद को, कि बोले मैम वो तो पर्सनल चॉइस होता है। बट फिर उन्होंने फिर काउंटर किया कि अरे पर्सनल चॉइस होता है वो तो बाद में तुम सजेस्ट करोगे नहीं करोगे। तो मैंने सोचा डिफेंड करने का कोई मतलब नहीं है अपने को, तो यहाँ पे गलत ही जा रहा। तो मैंने बोल दिया कि हाँ मतलब इंश्योरेंस बहुत जरूरी होता है, मेडिकल हो या लाइफ इंश्योरेंस हो जो भी हो, बहुत इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है हमारे लिए। तो मैं जरूर सजेस्ट करूंगा अगर कोई एडवाइस लेता है तो। फिर वो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले गए टेक्निकल में मैम। मतलब मैं सब पूरा सेबी से रिलेटेड पढ़ के गया था, इवन चैट जीपीटी से भी सब पूछ के गया था। बट उन्होंने क्वेश्चन पूछा अचानक से कि फॉरेक्स क्या होता है। तो फॉरेक्स अचानक से वहाँ पे थोड़ा सा माइंड में हो गया, फॉरेक्स आ गया क्वेश्चन। तो मैंने बोला मैं जो कंट्री के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स होते हैं, ये क्यों, मैं मुझे लग रहा था ये तो आरबीआई का क्वेश्चन आ गया मेरे में से अभी पढ़ गया था। देन वो आया एंड दे आस्क्ड कि कंपोनेंट्स ऑफ फॉरेक्स क्या होते हैं। आई टोल्ड फॉरेन करेंसीज लाइक यूएसडी। देन दे स्पेसिफिकली मेंशन गोल्ड होता है कि नहीं होता है। अब उस टाइम में मैं फॉरेक्स का फुल फॉर्म किया, तो मेरे दिमाग में आ रहा था फॉरेन करेंसीज। तो मैंने सोचा कि कैसे आएगा गोल्ड जब फॉरेन करेंसीज में। हम्म। बट फिर मतलब एक बार को मैंने थोड़ा सा डिप्लोमेटिक आंसर दिया, थोड़ा सा कुछ बोला। देन
गोल्ड नहीं होता है। फिर मेरे दिमाग में आया कि सारी करेंसीज ही बैक्ड बाय गोल्ड है, तो गोल्ड तो मतलब वाइडली एक्सेप्टेबल एसेट है। मैंने बोल दिया कि मैंने यही बात बोल दी कि सर सारी करेंसीज ही बैक्ड बाय गोल्ड है, तो गोल्ड जरूर होता होगा लॉजिकली, मतलब ऐसे बोला। तो उन्होंने बोला हाँ सही लॉजिक है। फिर उन्होंने पूछा ये प्राइम मिनिस्टर ने वर्क फ्रॉम होम वगैरह सजेस्ट किया है अपने फॉरेक्स कवर को बचाने के लिए, तो उसमें जो उन्होंने एक पॉइंट मेंशन किया है कि आप फॉरेन ट्रैवल कम करो, वो कैसे करेंसी बचाएगा। तो मैंने वही बोला कि जब हम फॉरेन कंट्रीज घूमने जाते हैं तो वहाँ पे अब उनके करेंसी की डिमांड बढ़ती है, और हमारे फॉरेन करेंसी रिजर्व्स कम होते हैं अगर हम उसको लेते हैं तो उस वजह से प्राइम मिनिस्टर ने बोला। देन चेयरपर्सन सर ने एक ही क्वेश्चन पूछा फैमिली बैकग्राउंड से रिलेटेड, तो वो मैंने आंसर कर दिया, फिर इंटरव्यू वैसे ओवर हो गया। सो ओके, तो ऐसा था। एचआर बेस्ड क्वेश्चंस ज्यादा नहीं थे? मैम टेक्निकल में यही आरबीआई वाला ही मैं काउंट कर रहा हूँ। हम्म। वो इन्वेस्टमेंट वाला तो मतलब नॉर्मल जनरल सा ही क्वेश्चन था, जो हम्म। कि सबको मतलब जानते हैं जो सब लोग। एंड हम्म। एचआर बेस्ड में तो यही था कि सेबी क्यों ज्वाइन करना है, ये आया था क्वेश्चन सेबी क्यों ज्वाइन करना, तो उसमें मैंने आंसर दिया कि मेरा इंटरेस्ट, और मैंने एक्चुअली क्वेश्चन प्रिपेयर करके गया था। हम्म। तो दो चीजें बताई उन्हें कि एक तो मतलब जब मतलब ये पूरा आंसर प्रिपेयर किया होता चैट जीपीटी से कि जब क्वालिफाई किया सीए तो दो गोल थे कि एक तो देश के फाइनेंशियल सिस्टम्स जो है उनको सिक्योर करना है, और दूसरा सबको एक्सेस टू फाइनेंस कराना है। तो इन दोनों गोल्स को मैं सभी में अचीव कर पाऊंगा, तो इस वजह से किया था। दूसरा मैंने ये भी बोला कि मैंने किसी और एग्जाम का, उन्होंने पूछा किस 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 एग्जाम का फॉर्म भरा, मैंने बोल दिया मैंने किसी का फॉर्म ही नहीं भरा रेगुलेटरी बॉडी में, बस सेबी का। एक काउंटर उस पे आया कि मतलब ये तो आपने मतलब रिस्क डाइवर्सिफाई नहीं किया, ऐसा मतलब कुछ बोला उन्होंने। बोला नहीं सर मैं बहुत श्योर हूँ, मुझे सेबी ही ज्वाइन करना है, इस बार नहीं होगा तो फिर मैं अपने करंट अफेयर्स वाले क्वेश्चंस को अच्छे स्ट्रॉन्ग करूंगा, करंट अफेयर्स स्ट्रॉन्ग करूंगा, और नेक्स्ट टाइम भी दूंगा, सेबी ही ज्वाइन करूंगा, मतलब मैं स्टिक रहा कि सेबी ही ज्वाइन करूंगा। देन ऐसे किया वो। नाइस। कुछ ऐसे क्वेश्चन नहीं थे हॉबीज के रिगार्डिंग, या आपके थोड़ा सा मतलब सीए बैकग्राउंड है तो उसमें थोड़ा टेक्निकल वगैरह क्वेश्चन नहीं थे? नहीं मैम, जबकि टेक्निकल बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया था, रीट्स और इनविट्स का टैक्सेशन भी प्रिपेयर करके गया था, बट ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आया। तो मैं एक्चुअली क्या था इस बार, जैसे जैसे इंटरव्यू ग्रुप में पता चल रहा था कि हम्म। चेन्नई में मतलब टाइम बहुत, चेन्नई वाले इंटरव्यू में 10-10 मिनट हुआ था क्योंकि कैंडिडेट ज्यादा थे, 2 ही दिन थे। दिल्ली वाले हम्म। में थोड़ा उससे ज्यादा, मतलब मैं दिल्ली में दिया था 10 to 15 मिनट्स का था हम्म। टाइम, एवरेज टाइम। फिर मुंबई में थोड़ा ज्यादा, 15-20 मिनट्स। और कोलकाता वाले में तो बहुत टेक्निकल, उन्होंने 30-35 मिनट्स लिया। तो टाइम और कैंडिडेट्स कितने उस बेसिस पे उन्होंने लिया था, तो इस वजह से टेक्निकल नहीं थे। जबकि कोलकाता वाले में बहुत टेक्निकल क्वेश्चंस आ रहे थे हम्म। जो ग्रुप्स में डाल रहे थे। तो वैसे था, थोड़ा सा आपको लक भी आपका फेवर करता है कभी कभी। वो तो होता है, 90% इज योर एफर्ट्स एंड 10% इज यस। लाइक द लक एंड योर किस्मत। Okay, so we are towards the end of the session. कुछ something that we are missing out that you want to suggest to the students that are preparing for the first time, or if they are preparing for the SEBI, कुछ ऐसा suggestion आप देना चाहोगे? मैं ओनली थिंग यही दूंगा दैट मीन्स वट एवर ग्रुप्स में मैं रहा हूँ, मैंने देखा है कि थोड़ा सा डिमोटिवेट हो जाते हैं नॉन कॉमर्स स्टूडेंट्स जो हैं। लेकिन यही बोलूंगा कि आपको बस वो प्रिपरेशन मैच करनी है, और हम्म। अगर बोर्ड ही आपको एलिजिबल किया हुआ है तो फिर आप एलिजिबल ही हो, और आप निकालोगे भी उसमें, को आपको हम्म। नहीं वो टेंशन लेना है। और दूसरा तो मैम ये है कि फेलियर्स होते हैं, जो बहुत अच्छे से प्रिपेयर करते हैं वो भी कभी फेल हो जाते हैं। मैं सब कोई फेल होता है, बट द थिंग इज कि आपको लगे रहना है, और हम्म। मतलब आप फेल कितनी भी बार हो सकते हो, आपको पास एक ही बार होना है। अगर आप एक बार भी आपका लक आपके साथ दे देगा तो फिर वो ड्रीम जॉब आप क्लियर कर लोगे। तो वो चीज आपको माइंड में रखना है, और ज्यादा आपको डिप्रेस्ड नहीं रहना है, ऐसा कुछ ज्यादा नेगेटिव थॉट्स नहीं लाने, पॉजिटिव सोच के हम्म। आप कर सकते एक और क्वेश्चन कि मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स थिंक कि हम अभी आपकी भी जैसे नई जॉब थी, आपने उसे एक महीने पहले ही ज्वाइन किया था, तो ऐसा नहीं लगा कि मैं जॉब छोड़ देता हूँ और मैं फुल्ली फोकस करता हूँ अपनी प्रिपरेशन में? नहीं वो तो अब मतलब फैमिली का क्या है, वो पर्सनल भी कुछ बहुत सी उसमें हम्म। फैक्टर्स रहते हैं कि आपको मतलब अभी
आप जॉब छोड़ के मतलब सेटिस्फाइड हो, प्रिपरेशन करके सेटिस्फाइड हो जैसे हो, तो उस बेसिस पे भी रहता है। और सेकंड मैंने ये सोचा था कि मैंने तो मतलब अ, अब 2 ही महीने बचे थे, 2 महीने में जॉब छोड़ के क्या प्रिपेयर कर लूंगा, ऐसे सोच के मतलब कि जो भी है मॉक टेस्ट देके ट्राई करता हूँ। अगर कुछ मतलब आप ले सकते हो ब्रेक, अगर आप 8 महीने का ब्रेक लेके करना चाहते हो, आपको जॉब में नहीं टाइम निकाल पा रहे हो, या फिर थोड़ी स्ट्रेसफुल जॉब आपको लग रही है, तो लग रहा है ज्यादा एफर्ट्स मांग रही है जॉब, तो आप वो तो पर्सनल चॉइस है, आप आराम से अपना जॉब क्विट करो, आप प्रिपेयर करो, फिर एग्जाम निकालो जो भी है। यस, जैसे सेबी के सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें जैसे फाइनेंस वगैरह, तो उसमें वही है कि रिस्क वर्सेस रिटर्न्स। तो आप अगर ज़्यादा रिस्क ले रहे हो तो हाँ आपको टाइम ज़्यादा मिलेगा, पर एट द सेम टाइम वो रिस्क ज़्यादा ही है। तो हाँ, इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन कि रिस्क एवर्स है या रिस्क प्रो है। ओके, नाउ एनी लास्ट मैसेज दैट यू वांट टू गिव टू द स्टूडेंट्स? ओनली थिंग इज कि मतलब जब आप स्टूडेंट होते हो तो दो चीजें, एक तो मतलब मॉक देने से लोग डरते हैं कि मतलब मैंने देखा, मतलब मेरे बहुत से दोस्त हैं अभी एस्पिरेंट्स हैं, तो मॉक नहीं देना चाहते हैं, बट मैं उनको भी सजेस्ट करता हूँ और उनसे बात भी होती है मेरी, वो भी बताते हैं कि जब मॉक दे देते हैं तो ज्यादा बेनिफिट होता है उस चीज का। और दूसरा मैम कि अगर फेल हो भी रहे हो, टाइम लग भी रहा है, तो भी उसको ज्यादा ध्यान नहीं देना आपको। मतलब जैसे मैंने बोला कि एक बार भी लक आपका कितनी बार खराब होगा, मतलब आप कितनी बार फेल हो जाओगे, एक बार तो बस फेवर करना उसको। एक बार आप सेलेक्ट हो गए उसके बाद थोड़ी आप निकलोगे बैड लक से। तो दैट्स, एक बार आप फेल हो गए फिर भी आप सेलेक्ट हो सकते हो, बट आप सेलेक्ट हो गए फिर आप अनसेलेक्ट नहीं होगे, तो इस चीज को सोच के आप आगे निकल सकते Correct. And anything that you want to say about EduTap, that how we have helped you, or if we have helped you or not? हो। इसमें आई ऑल्सो मेंशन्ड इन दिस Hmm. इंटरव्यू दैट टू थिंग्स आर देयर। एक तो जो गाइडेंस था, जो इनिशियल गाइडेंस था, जब मैं सी फाइनल में था, जो भी मैंने वीडियोस देखे, एनालिसिस देखा, तो वो एडुटैप का ही मुझे बेस्ट लगा। एंड आई एवरी टाइम कट ऑफ का क्या डेट रहेगा, कट ऑफ की क्या एक्सपेक्टेंस है, जो हमारे फेज टू का एनालिसिस वीडियो तो उसी दिन आया था, उसने भी बहुत मतलब एक रियलिटी चेक दिया कि मतलब क्या होगा क्या नहीं होगा उसमें। एंड सेकेंड थिंग इज दैट मॉक इंटरव्यू एडू टाइप का बहुत अच्छा लगा मुझे, मेरे पैनलिस्ट बहुत एक्सपीरियंस थे और उन्होंने भी एक्शनेबल फीडबैक्स दिया। व्हेन समवन इज डायरेक्टली फ्रॉम द बोर्ड, डायरेक्टली फ्रॉम द कंपनी, दैट रियली गिव्स समवन कॉन्फिडेंस कि हाँ मेरी प्रिपरेशन अच्छी है, कि उनसे अगर ऐसा फीडबैक मिला देन आई कैन Mm. डू इट। दैट्स Okay, nice. Thank you so much, Raj, for attending this session. It was really nice talking with you and understanding your strategy. Thank you so much for joining. थैंक यू सो मच।